کہیں سے پیپر آئے نہ آئے ڈیفینیشن سے ایم سی کیوز اور پیپر لازمی آتا ہے. سیکشن 4 ڈیفینیشنز. ڈیفائنس دیکھ لیتے ہیں. ڈیفینیشنز کے اندر سب سے پہلے ڈیفائن کیا ہے؟ جو ہمارا سیکشن 4 ہے اس کا آگے جو 1 ہے، سیکشن 4 آگے اے میں جو سب سے پہلی ڈیفینیشن ہے وہ ہے ایڈوکیٹ جنرل کی. اچھا ایڈوکیٹ جنرل ہے، یہ آپ کا پروونس لیول پہ ہوتا ہے اور یہ سمجھ لیں کہ ہائر رینک ہے ایڈوکیٹ جنرل. اب وہ بات کر رہا ہے کہ اس کے اندر جو ڈیفینیشن میں ایڈوکیٹ جنرل کی ڈیفینیشن میں 2 لوگ آتے ہیں، ایک ایڈوکیٹ جنرل خود اور دوسرا کوئی بھی بندہ جس سے گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی ایز اے ایڈوکیٹ جنرل. یہ 2 لوگ آتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل کی ڈیفینیشن کے اندر. بی کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو بی کے اندر 2 باتیں ہیں، بیلیبل اور نان بیلیبل اوفینس. اچھا بیلیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے اور نان بیلیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے، اسے تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، فردر اسے ہم آگے جا کے بھی پڑھیں گے. بیلیبل اوفینس ایسے اوفینس ہوتے ہیں جس کے اندر جو بیل ہے وہ ایز اے میٹر آف رائٹ گرانٹ کرتی ہے کورٹ. اگر کسی سے بیلیبل اوفینس ہوتا ہے اس کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو کورٹ اس میں کیا گرانٹ کرتی ہے؟ بیل میں ضمانت رہا کر دیتی ہے ضمانت کے اوپر. نان بیلیبل اوفینس ایسے ہینیس نیچر کے سخت کرائم ہوتے ہیں جسے عام طور پہ وکیل 3 سال سے زیادہ جس میں سزا اسے کیا کہتے ہیں؟ نان بیلیبل. سر ڈیتھ کی ہوگی، لائف امپریزنمنٹ یا 10 سال کی جن میں سزا ہے وہ نان بیلیبل اوفینس ہے. تو ہمیں پتہ کیسے لگتا ہے؟ ہاں جو بیلیبل اور نان بیلیبل اوفینس ہے وہ والے اوفینس ہے جو سی آر پی سی کا جو سیکنڈ شیڈول ہے اس کا آگے کالم نمبر 5 ہے، اس کے اندر جس کو بیلیبل شو کیا ہوگا وہ بیلیبل اوفینس اور جس کو نان بیلیبل شو کیا ہوگا وہ کون سا اوفینس ہے؟ نان بیلیبل اوفینس ہے. اور یا کسی اور لا میں بیلیبل یا نان بیلیبل لکھا ہو تو اس کا وہی مطلب لیا جائے گا. یہ تھا بیلیبل اور نان بیلیبل کا مطلب. جو سی پوائنٹ پہ ڈیفینیشن آتی ہے وہ آتی ہے چارج کی، کہ چارج سے کیا مراد ہے. چارج کو سمجھ، چارج سے مراد کسی بندے کے اوپر کوئی جرم ہے. مثال کے طور پر ایک بندے نے کوئی جرم کمٹ کیا ہے، اب اس کے اوپر 3-4 قسم کے جرائم لگ گئے ہیں. 302 لگ گیا ہے، 149 لگ گیا ہے، اس کے علاوہ ایک 337 وغیرہ لگے گا. اس نے کسی کا سر وغیرہ پھوڑا تو اس کے اندر 337 A34 کے جو بھی اس کا لگ گیا ہے، اوفینس لگ گئے. اب وہ ایف آئی آر میں 4 اوفینس ہے. عدالت آتی ہے، عدالت اسے کہتی ہے کہ تمہارے اوپر 4 ایلیگیشنز ہیں، 302 149 اور 337 A4 ہے. تو اب وہ کیا ہوگا؟ چارج کی صرف ایک چارج کے ورڈ میں وہ کیا کر رہا ہے کہ ہیڈ آف چارج بھی آ جائے گا. ہیڈ آف چارج کیا ہوگا؟ 302 مین اس کا چارج ہے. دوسرا اس کے اندر کون سا آ جائے گا؟ اگر تو چارج مور دین 1 ہیڈ ہے، مثال تو 302 بھی آ گیا، 337 بھی آ گیا، تو سارے بھی کس میں آئیں گے؟ چارج کی ڈیفائن کے اندر آئیں گے. چارج کو ڈیفائن اس طرح کرنا ہے کہ مثال کسی بندے نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے اوپر 3 سے 4 اوفینس لگے ہیں، تو چارج کے اندر آئے گا ایک ہیڈ آف چارج بھی ہو سکتا ہے یا ایک سے زیادہ مور دین 1 ہیڈ آف چارج بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندے پر ایف آئی آر ہوئی ہے 302 کی، اس کے علاوہ اس کے اوپر 337 A4 کی ایف آئی آر ہو گئی ہے اور 149 لگا، تو اب اس کا فرد جرم ان تینوں کی عائد ہو رہی ہے. تو چارج کے اندر یہ تینوں ہیڈ آف چارج بھی آئیں گے. یہ سمپل آپ کر لیں اس طرح. تو چارج شیٹ کے اوپر چارج لگتا ہے. ڈی پہ اپنے چارج کرے گا، ڈی اور ای امٹ ہے. آگے ہمارا کون سا آ رہا ہے؟ ایف آ رہا ہے. اچھا ایف کس کو ڈیل کرتا ہے؟ ایکس ڈیل کرتا ہے کوگنیزیبل اوفینس. یہ سمجھنے والا ہے. کوگنیزیبل اوفینس یا کوگنیزیبل کیس ایسے کیس ہیں جس کے اندر پہلی چیز ہے جو پولیس ہے وہ وداؤٹ وارنٹ، وارنٹ کسے کہتے ہیں؟ بغیر اجازت کے کیا کر سکتی ہے؟ گرفتار کر سکتی ہے. پہلی چیز. دوسری چیز ہے اس میں کوگنیزیبل اوفینس کے اندر پولیس ہے وہ ایف آئی آر دے سکتی ہے. کیا دے سکتی ہے؟ ایف آئی آر دے سکتی ہے وداؤٹ پرمیشن لیے بغیر، فرام ہائر اتھارٹی. کوگنیزیبل اوفینس کون سے ہو گئے؟ ایسے اوفینس جس میں پولیس وداؤٹ وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے کہ بغیر اجازت کی گرفتار کر سکتی ہے، اور پولیس جس میں ایف آئی آر لوج کر سکتی ہے. یہ ڈیفینیشن میں نے لکھا، میں ایکسٹرا بتا رہا ہوں. پولیس ایف آئی آر لوج کر سکتی ہے وداؤٹ ٹیکنگ پرمیشن فرام ہائر اتھارٹی. اور تیسری اس میں موسٹ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ کوئی اوفینس کوگنیزیبل ہے یا نان کوگنیزیبل ہے. تو اس کے لیے یاد رکھے سیکنڈ شیڈول ہے، اس کا کالم نمبر کون سا ہے؟ شاباش 3 ہے.
ये MCQs बांधते हैं। ये सेकंड शेड्यूल कॉलम नंबर 3 ये बताएगा कोई ऑफेंस कोग्निजेबल है या नॉन कोग्निजेबल है। कोग्निजेबल ऑफेंस को उर्दू में क्या कहते हैं? काबिले दस्त अंदाजी, जिसे पुलिस बगैर इजाज़त के गिरफ्तार कर सकती है। ये है कोग्निजेबल ऑफेंस। इन पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लें। यह है कोग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड। अगली जो मैं डिफाइन मिल जाती है वो H आ गया है। H किसे कहते हैं? कंप्लेंट से। कंप्लेंट को सिंपल याद रखें, प्राइवेट कंप्लेंट से मिलता जुलता, इसे हम कहते हैं इस्तगासा। अच्छा, इस्तगासा और कंप्लेंट क्या होता है? कंप्लेंट के अंदर दो चीज़ें हैं, या तो ये ओरल हो सकती है या ये क्या हो सकती है? रिटन हो सकती है। और ये होगा क्या? ये कोई एलिगेशन हो सकती है। ये एलिगेशन है। अब या तो किसी नाउन पर्सन के खिलाफ भी हो सकती है कि किसको हम जानते हैं, या कोई अननाउन बंदा भी हो सकता है जिसके खिलाफ, नामालूम बंदे के खिलाफ भी हम इस्तगासा जमा करवा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। और ये होगी किसको? ये मजिस्ट्रेट को होगी। मजिस्ट्रेट को होगी। इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद होगा कि मजिस्ट्रेट क्या करे? उस बंदे के खिलाफ क्या करे? कोई एक्शन ले। तो अब फिर हम देखते हैं इस्तगासे कंप्लेंट का। इसका वैसे सेक्शन 200 से ऑनवर्ड ये स्टार्ट होता है कंप्लेंट का, हमारा प्राइवेट कंप्लेंट का। इधर देखते हैं, ये ओरल या रिटन एलिगेशन है, इल्ज़ाम है कि किसी नाउन जानने या अननाउन, नामालूम और नामालूम बंदे दोनों पे हो सकता है। और ये मजिस्ट्रेट को देते हैं ताकि वो क्या ले? एक्शन ले उन लोगों के खिलाफ। तो इसको हम क्या कहते हैं? कंप्लेंट कहते हैं। अगली जो डिफाइन है वो हमें मिल जाती है हाई कोर्ट के। आकर हाई कोर्ट किसे कहना है? हाई कोर्ट को उसने सिंपल लिखा है कि ये हायर फोरम है, किसके अंदर? एक प्रोवेंस के अंदर। और इसका मकसद क्या है? इसके अंदर क्या हो? क्रिमिनल अपील हो सके इसके अंदर, या क्या हो सके? रिवीजन कर सके हम यहाँ। हाई कोर्ट क्या? ये हायर फोरम है या हायर कोर्ट है एक सूबे के अंदर, जिसके अंदर क्रिमिनल अपील या रिवीजन फाइल की जा सकती है। तो इससे कहते हैं हाई कोर्ट। और पंजाब के अंदर लाहौर हाई कोर्ट, KPK के अंदर पेशावर हाई कोर्ट, और सिंध के अंदर कराची की हाई कोर्ट, ये फेमस है। L के अंदर है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, और M के अंदर है जुडिशल प्रोसीडिंग। अब इनमें क्या फ़र्क है ये देख लें। सबसे पहले आपने याद रखना है, इंक्वायरी कौन करेगा? कोर्ट करेगी। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगी? पुलिस करेगी। और जुडिशल प्रोसीडिंग कौन टेक करेगी? कोर्ट। पहला हमारे पास ये आ गया पॉइंट, ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है इसका? इंक्वायरी का। कि इंक्वायरी क्या होता है? ये ट्रायल से पहले वाली चीज़ें होती हैं। ट्रायल इंक्लूड नहीं है। ट्रायल से पहले वाली है, ट्रायल को एक्सक्लूड करके अदालत जो कार्रवाई करेगी वो इंक्वायरी है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है आपकी, ये पुलिस करेगी। और इसके अलावा कोई भी बंदा और कर सकता है, अदर पर्सन भी कर सकता है जो मजिस्ट्रेट ना हो, अदर देन मजिस्ट्रेट भी कंडक्ट कर सकता है। जुडिशल प्रोसीडिंग में फिर वो दूसरा पॉइंट वही है कि इसके अंदर सारे इंक्लूड हैं। इसके अंदर वो जुडिशल प्रोसीडिंग के अंदर वो वाला पार्ट भी इंक्लूड है जिसके अंदर अदालत क्या कर सके? एविडेंस ले सके ऑन ओथ। उसके ऊपर अदालत जो एविडेंस लेती है वो भी क्या? जुडिशल प्रोसीडिंग का हिस्सा है। ट्रायल भी किसके अंदर आता है? जुडिशल प्रोसीडिंग के अंदर आ जाता है। और ट्रायल इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तीसरी चीज़ है कि इसका मकसद क्या होता है? पर्पज़ क्या होता है? इसका पर्पज़ होता है कि इसके अंदर क्या होगा? इंक्वायरी के अंदर वो ये प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है या प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है बाय कोर्ट। इसके लिए मौजू जो वर्ड है वो जो हमें लिखना चाहिए वो इंक्वायरी आएगा। किसी भी मैटर को अदालत इंक्वायर करती है, अदालत में आता है कि FIR बनती है नहीं बनती है, कोई बेल स्टेज है, बेल स्टेज पे जो बेल को सुनती है और किसी को बेल देनी है नहीं बनती, तो उसके लिए अदालत क्या करती है? इंक्वायरी करती है। इन्वेस्टिगेशन का पर्पज़ क्या होता है? इसका पर्पज़ है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कलेक्शन ऑफ के एविडेंस को, सबूत को इकट्ठा करना किसका काम है?
ये पुलिस का काम है। एविडेंस, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करना, ये इन्वेस्टिगेशन का मकसद है। अब क्योंकि हमने जुडिशल प्रोसीडिंग के अंदर बात की कि इसके अंदर ट्रायल क्या है, इंक्लूड है, तो ट्रायल का जो हम देखते हैं बेसिक पर्पस क्या होता है, इस बात का पता लगा है कि आया किसी बंदे को कन्विक्ट करना है या एक्विट करना है। तो ये किसी को बरी करना है या सज़ा देनी है, तो ये क्या है, जुडिशल प्रोसीडिंग का मकसद होता है। ट्रायल का ये मकसद होता है। इंक्वायरी का मकसद सिर्फ ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन करनी है, प्रीलिमिनरी, और इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि पुलिस करेगी, अदर देन मजिस्ट्रेट करेगा, और पर्पज़ क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। जुडिशल प्रोसीडिंग भी कोर्ट करती है और इसका मकसद क्या होता है, एविडेंस लेती है ऑन ओथ के ऊपर, और इसका मकसद होता है किसी बंदे को कन्विक्ट करना या एक्विट करना है। अगली हमारे पास आ गई है डेफिनेशन MA, मजिस्ट्रेट। कि मजिस्ट्रेट आखिर किसे कहेंगे। मजिस्ट्रेट का लफ्ज़ हमने बार बार तब मजिस्ट्रेट किसने दो बातें लिखी हैं इसके अंदर, कौन इंक्लूड है, पहला बंदा इंक्लूड है, जुडिशल मजिस्ट्रेट इंक्लूड है इसके अंदर, और दूसरा बंदा कौन सा इंक्लूड है, जो अंडर सेक्शन 12 एंड 14 के अंदर कौन सा स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट आता है। ये दोनों भी इसके अंदर मजिस्ट्रेट के अंदर इंक्लूड है। ये जो तीन बंदे होंगे, तीनों बंदों को क्या कहेंगे, हम कहा जाएगा ये कौन है, मजिस्ट्रेट है। आगे आ गया है N पे, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, नाकाबिले दस्त अंदाजी। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं, इसको हम देख लें। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कोग्निजेबल केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर पुलिस विदाउट जो आपके वारंट है गिरफ्तार नहीं कर सकती, गिरफ्तार नहीं कर सकती। पहली बात है विदाउट वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती। और अगर नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की FIR लॉन्च करनी है तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस परमिशन लेगी, परमिशन लेगी अपनी हायर अथॉरिटीज़ के ऊपर से। तीसरी बात जो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस के अंदर है, ये कहाँ लिखा हुआ है, सेकंड शेड्यूल कॉलम नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है कि कौन सा ऑफेंस कोग्निजेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन कोग्निजेबल है। ये आपने तीन बातें लाजमी लिखनी है नॉन कोग्निजेबल। पहली बात कि विदाउट वारंट पुलिस की अरेस्ट नहीं कर सकती। पुलिस ने अगर FIR देनी था 406 का जो FIR होती है उसके लिए पुलिस को परमिशन चाहिए होती है। और सेकंड शेड्यूल कॉलम नंबर 3 के अंदर लिखा है कौन सा ऑफेंस नॉन कोग्निजेबल और कौन सा ऑफेंस कोग्निजेबल। और ये कोग्निजेबल का उल्टा है, ये नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। बात आ जाती है ऑफेंस कि आखिर जुर्म कहते किसे हैं, वो हम देख लेते हैं। हमारा जो डेफिनेशंस की ऑफेंस क्या है, जुर्म की तारीफ क्या है कि जुर्म क्या है। तो जुर्म में वो सिंपल बात कर रहा है, कोई भी एक्ट है या ओमिशन है। एक्ट कहते हैं किसी काम का करना और ओमिशन कहते हैं किसी काम का करना जो आपके जिम्मे था और वो आप नहीं करते, वो ओमिशन है। कोई भी एक्ट या ओमिशन जो पनिशेबल है अंडर एनी लॉ, पनिशेबल है अंडर लॉ, वो क्या कहलाएगा, ऑफेंस कहलाएगा। वो चाहे PPC के अंदर पनिशेबल हो, वो चाहे CNCA के अंदर पनिशेबल हो, या किसी भी लॉ के अंदर पनिशेबल हो, वो क्या कहलाएगा, जुर्म कहलाएगा। ये ऑफेंस की सिंपल सी डेफिनेशन है। P पे आ गया ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। इसको क्या कहते हैं, सिंपल मैं कहूँ तो SHO, पुलिस स्टेशन, पुलिस PS पुलिस स्टेशन। इसमें कौन आएगा, पहले नंबर पे SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर आ जाएगा। अगर ये मौजूद नहीं है तो इसके रैंक से नीचे वाला बंदा फिर वो क्या होगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से समझा जाएगा। अगली जो डेफिनेशन है वो क्यू के अंदर वो बात करता है प्लेस की। प्लेस जगह, या प्लेस से मुराद क्या चीज़ है। वो कह रहा है प्लेस किसे कहते हैं। प्लेस को तो सिंपल लिखा है, इसके अंदर कोई हाउस भी, घर भी आ जाता है, कोई बिल्डिंग भी है वो भी प्लेस कहलाएगी। अगर इसके अंदर आपका कोई टेंट लगा हुआ है, टेंट भी क्या है, वो भी आपकी प्लेस कहलाएगी। अगर आपकी कोई वेसल है, वेसल तो वैसे कहते हैं कि जो पानी के अंदर कोई चीज़ चलती है, बैरी जहाज वगैरह,
वेसल भी आपकी उसने क्या प्लेस कहलाएगी। ये आर के अंदर प्लीडर, प्लीडर को सिंपल समझ ले, इसमें कौन आएगा, वकील, या जिसे हम क्या कह सकते हैं एडवोकेट, या कोई भी बंदा जो ऑथोराइज है। अब वो रह नहीं गए, पहले ऑथोराइज थे, ऑथोराइज है, क्या कर सकता है कोर्ट के अंदर प्लीड कर सकता है, जो किसी का मुकदमा लड़ सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, प्लीडर कहेंगे। एस पे आ गई है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन किसे कहेंगे, पुलिस स्टेशन से मुराद कोई भी स्टेशन, कोई भी जगह जिसे आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर कर देती है कि क्या डिक्लेयर करती है कि ये पुलिस स्टेशन है, तो उसे समझा जाएगा कि वो क्या है, वो पुलिस स्टेशन है। आगे आ गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मुराद वो बंदा जो हाई कोर्ट के अंदर किसे रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। हर हाई कोर्ट के कमरे अंदर वो सारे लोग क्या कहलाएंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर से ऊपर कौन सा बंदा होता है, एडवोकेट जनरल, जिसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था। उसके अलावा सब डिवीजन किया कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो जो आपका एक डिस्ट्रिक्ट है उसे सब डिवीजन के अंदर डिवाइड कर देगी। इसके अलावा हमारे पास आए थे अगर कोई बात एक्ट और मिशन है जिसको यहाँ नहीं लिखा गया डेफिनेशन के अंदर, तो जो पीपीसी के अंदर मतलब दिए गए हैं वही मतलब इधर भी लिए जाएंगे। अगली बात आ गई है सेक्शन 5 आ गया। सेक्शन 5 क्या बात करता है, दो बातें करता है। पहली बात करता है जो पीपीसी के अंदर जितने भी जराइम हैं, इन सब जराइम को कौन डील करेगा, किसके अंदर इनको ट्राई किया जाएगा, इनका ट्रायल कैसे चलेगा, किसके कानून के मुताबिक चलेगा, सीआरपीसी। फिर वो कहता है अदर लॉ, जो अदर लॉ के अंदर भी अगर कोई जुर्म होता है तो उसका जो ट्राई करना है, ट्रायल चलना है, वो भी किसके तहत चलेगा, सीआरपीसी के तहत चलेगा, अगर कोई और कानून मौजूद नहीं है तो। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।